Students, today we are going to start a new chapter, that is nuclei. Nuclei is one of your important chapter. In this chapter we are going to deal about the composition of nucleus, the importance of nucleus, and what are the different function of the nucleus. In the last chapter, we had learned that atomic nucleus was discovered in the year 1911 by Rutherford and his associates from the study of large angle of scattering of alpha particles from thin metal foils. What we find in that study? क्या मिला था हम लोग को स्टडी में? रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जिसमें एक सेंट्रल कोर था and the central core of every atom which contains the entire positive charge more than 99.9% of mass of the atom. That is the simple composition of the atom. So what we find in the atom is order of the size 10 to the power minus 10 meter, while the size of the atomic nucleus is 10 to the power minus 15 meter. The most of the space around the nucleus of an atom is a empty space, isn't it? In the previous lecture, in the previous class, we had already find that most of the spaces are empty, and the most important thing is that it is consist of, this nucleus is consist of basically two particle. One is known as to be your proton and another one is known as to be your neutron. As you know, that proton is the positively charged particle while neutron has no charge. So what we find that the composition of nucleus, that is the proton and nucleus, that is known as to be your nucleon, and every atomic nucleus except the hydrogen had two type of particle, one is proton and another is neutron. And this proton is the fundamental particle of the positive charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and mass of the one proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. While neutron is the second fundamental particle which has no charge and mass is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg, and the entire atom is consist of, or you can say that composed of, this positively charged particle. While this no charge particle also plays a vital role in this. First come to the concept what is known as to be your atomic number. What is your atomic number? So what is atomic number? Atomic number of an element is number of proton present inside the nucleus. So suppose nucleus is spherical in shape. Suppose in nucleus the number of protons are present, that is known as to be atomic number. It is simply represented by Z. While mass number of element is known as to be the total number of proton as well as the total number of neutron also. So we can say that a nuclide is a specific nucleus of atom which is characterized by its atomic number Z and mass number is A, is called the nuclear species. It is simply represented by the in this way. So what is A? A is your, this is your A, this A is your, this A is your total mass number. It is the sum of total number of Z plus, that is your atomic number, or you can say the number of proton, and this N is your number of electron. So this is all about the composition of nucleus. So nucleus contain two things. One is your number of proton and another is your number of neutron. So I think you are familiar about this. ये आपको पता होगा कि न्यूक्लियस जो बना है वो दो पार्टिकल से बना है. बेसिकली न्यूक्लियस में दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल रोल प्ले करते हैं. एक प्रोटॉन प्ले करता है और दूसरा न्यूट्रॉन प्ले करता है. प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है आपका? तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है. और ये दोनों मिल करके आपके न्यूक्लियस का कंपोजिशन करते हैं. और टोटल मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे. बाय दिस A वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मास नंबर, और Z से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन. समवेयर बहुत सारी बुक में आपने दिखा होगा कि लिखा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज ऑल्सो पार्शियली ट्रू. आप कह सकते हो कि पार्शियली करेक्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने कोई अपना चार्ज लूज नहीं किया है, इफ इलेक्ट्रॉन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो ये न्यूक्लियस का सिंपल कंपोजिशन है. अब देखिए
किसी भी न्यूक्लियस का हम लोग दो चीज निकालते हैं ना, एक हम लोग निकालते हैं कि उस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, द न्यूक्लियस का साइज जो है वो हम लोग उसके रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, यू कैन सी दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको निकालते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है दैट इज हम लोग लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। सो वॉल्यूम आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज योर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब ये जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। तो 4/3 पाई क्या है, 4/3 पाई इज योर कांस्टेंट, तो 4/3 पाई जब आप कांस्टेंट को हटाएंगे कोई अपोजिट साइड लाएंगे देन यू कैन राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/3, आर क्यूब क्या होता है तो यहां पे लाओगे तो 1/3 एंड दिस आर नॉट इज योर कांस्टेंट। आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो इंपेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब यहां पे देखिए रेडियस जो है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास नंबर के 1/3 के। सो जैसे जैसे रेडियस चेंज करेगा, सॉरी जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज करेगा वैसे वैसे आपका रेडियाई चेंज करेगा। सो द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन दी, यू कैन से दैट एटॉमिक मास नंबर। साइज किस पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर पर, मतलब मास नंबर 1/3, तो मास नंबर अगर आपका इंक्रीज करता है तो रेडियस आपका इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा जो न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज योर न्यूक्लियर डेंसिटी। देखिए डेंसिटी ऑफ एनी मैटर इज नोन एज टू बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम के मास को अगर उसके वॉल्यूम से आप डिवाइड करोगे इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो विल बी इक्वल्स टू ma, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू योर ma, यू कैन राइट ma, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ma डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपका हो जाएगा दिस विल बी योर इक्वल्स टू 3/4 पाई 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब। और सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विच इज 2.29 इंटू 10⁻17 kg per meter cube. This is one of the important value. This is will be your 2.29 into 10⁻17 kg per meter cube. ये देखिए आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है, न्यूक्लियर डेंसिटी को कैलकुलेट किया है। अब देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी के अपने कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं, द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। क्लियरली आपने देखा कि ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं है, दिस डिपेंड्स अपॉन द रेडियाई, है ना, 3m 4 पाई आर नॉट इज योर इंपेरिकल कांस्टेंट, तो ये मास पर डिपेंड नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियर प्रोसेस में डेंसिटी ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियस की सेम होती है। दूसरा क्या है, द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, सच हाई डेंसिटी आर फाइंड इन वाइट ड्वार्फ स्टार विच कंटेन मेनली न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द न्यूक्लियस यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है एंड डिक्रीज ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब आप सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जैसे जैसे बाहर निकलने लगेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। न्यूक्लियर रेडियाई जो होता है इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेस to the 1/2 of its maximum value at its center. So these are the prominent features regarding the nuclear radii, nuclear density। मतलब आपको एक रफ आइडिया लग गया कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन कैसा है। तो न्यूक्लियस के कंपोजिशन में दो चीजें हैं, क्या है, वन इज योर प्रोटॉन एंड अनदर इज योर न्यूट्रॉन, यानी दो चीज से मिलकर बना है भाई, एक तो प्रोटॉन है उसके सेंटर पे, दूसरा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके साइज के डिटर्मिनेशन में न्यूट्रॉन एक वाइटल रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ट्रिमेंडसली द मास नंबर इंक्रीज करता है। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a⁻1/³ के, सो एज द मास नंबर इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीज करेगा, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है।
ये तो हो गया उसका शेप, साइज, प्रोमिनेंट फीचर न्यूक्लियर का। न्यूक्लियाई का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज के वर्ल्ड में, क्वांटम फिजिक्स के वर्ल्ड में न्यूक्लियाई का स्टडी इतना वाइटल रोल प्ले क्यों करता है? देखिए, सबसे पहले एक रिलेशन आता है, दैट इज नोन एज टू बी योर मास एनर्जी रिलेशन। ये जो मास एनर्जी रिलेशन है, दिस रिलेशन was given by the scientist अल्बर्ट आइंस्टीन in 1905। अल्बर्ट आइंस्टीन में अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने रिलेशन में क्या पाया? उन्होंने पाया कि उन्होंने सबसे पहले मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया। क्या एस्टैब्लिश किया? कि मास और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द मास। उन्होंने कहा कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? दिस रिलेशन सेड दैट व्हेन ए सर्टेन मास m disappears as equivalent amount of energy E appears and vice versa। यानी किसी में अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मास का डेफिसिट हो रहा है, कुछ मास डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एम हम लोग डेफिसिट मास के लिए लिखते हैं, अगर सर्टेन मास डिक्रीज कर रहा है तो वो मास जो है सो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एनर्जी डेफिसिट कर रही है तो वो मास में कन्वर्ट हो जाती है। इसी का जो मेन इंटरेक्शन, जो मेन पॉइंट आया इस रिलेशन का, इसने क्या किया? इसके पहले हम लोग दो क्लासिकल लॉ से फेमिलियर थे। एक क्लासिकल लॉ क्या कहता था? कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी सिस्टम में जितना मास है वो कंजर्व रहेगा। दूसरा क्या कहता था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी पहले थी वो कंजर्व रहेगी। सो दीज टू लॉ आफ्टर द एनर्जी मास रिलेशनशिप, दीज टू लॉ यूनिफाइड टुगेदर, और इस दोनों लॉ ने मिलकर के एक नया लॉ दे दिया। देन द लॉ इज द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरएक्शन। मतलब किसी पार्टिकल में, किसी मैटर में मास और एनर्जी बिफोर रिएक्शन जितना है, आफ्टर रिएक्शन वो कंजर्व रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में। ठीक है, इसी के बाद एक नया टर्म आया, दैट इज नोन एज टू बी योर मास डेफिसिट। व्हाट इज मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट? देखिए, ये तो आपको पता है कि हम जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उससे एटम के मास को मेजर कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द एटम। अगर आपको पता है कि किसी न्यूक्लियाई के अंदर दिस मच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड दिस मच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ये आप जानते हो कि इतना प्रोटॉन प्रेजेंट है, इतना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन का मास इतना है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, तो एक्चुअल मास इसका कितना होना चाहिए? तो व्हेन वी फाइंड आउट द एक्चुअल मास, जब हम लोगों ने एक्चुअल मास निकाला और जब एक्सपेरिमेंटल मास निकाला, एक्सपेरिमेंटल मास कैसे निकाला? तो भाई उसको मेजर कर लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो व्हाट वी फाइंड दैट देयर इज ए मास डिफेक्ट। यहां पे क्या है कि एक्चुअल मास से एक्सपेरिमेंटल मास हमेशा कम आ रहा है। तो जो एक्चुअल मास था, जो आपने मेजर किया एक्चुअल मास, जो एक्चुअल मास होना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली आपको वो मास नहीं मिल रहा है, देयर इज अ डेफिसिट ऑफ मास। दिस इज नोन एज टू बी द मास डिफेक्ट। ठीक है, यही आपका मास डिफेक्ट है। अब देखिए, इसी मास डिफेक्ट को हम कैसे देखते हैं? दिस इज योर मास डिफेक्ट। टोटल नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ, आपको मास ऑफ एक प्रोटॉन का पता है, टोटल आपने प्रोटॉन का मास निकाल लिया, जेड इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए इज योर टोटल मास नंबर, टोटल मास नंबर में आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, सो यू गेट द मास नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन। ये आपका एक्चुअल होना चाहिए था, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको जब आपने एक्सपेरिमेंटली जो मास मिला उससे माइनस किए तो जो डिफरेंस आया दैट इज नोन एज टू बी द डेफिसिट mass, and this deficit mass is known as to be E is equals to delta mc square, that is known as to be your binding energy। ये जो है आपका डेल्टा mc स्क्वायर, यहाँ अगर आप डेल्टा लगाओगे दैट इज द डेफिसिट ऑफ मास सेट डेल्टा mc स्क्वायर, सो दिस इज योर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब कंसेप्ट उठता है कि बाइंडिंग एनर्जी है क्या? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, आपको पता है कि दिस इज, सपोज दिस इज योर न्यूट्रॉन, दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से क्या जानते हो
दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे के को हमेशा रिपेल करेंगे। बस these two positively charged particle are combined together inside a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर में दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक साथ हैं। It means there must be a force, that force which is greater than the electrostatic force. जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए था उससे बड़ा आपने कोई सा फोर्स जरूर लगाया है जिसके चलते कि ये आपस में बंधा हुआ है, दैट इज नोन एज टू बी योर बाइंडिंग एनर्जी। So binding energy of a nucleus is the energy with which nucleon are bound in the nucleus. It is measured by the work required to done to separate the nucleons an infinite distance apart from the nucleus so that they may not interact with each other. मतलब आप उसको इस तरह से इंटरैक्ट नहीं कर सके उतनी बाइंडिंग एनर्जी जिससे कि आपने उस न्यूक्लियस को बांध रखा है, दैट इज नोन एज टू बी योर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी में अगर आपने जो इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा दिस, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सी स्क्वायर से, दिस मल्टीप्लाइड विद द सी स्क्वायर, दिस विल गिव यू द कंसेप्ट ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम लोग टोटल बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब आइंस्टीन के और कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा ये डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? So binding energy per nucleon is the average energy we have to spend to remove a nucleon from nucleus to the infinite distance. It given by the total binding energy. अगर total binding energy को आप मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक न्यूक्लियन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको पता है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है और उसको आपने मास नंबर से डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। और एटॉम ए मास नंबर 30 से लेकर के 170 के बीच का बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि एक नॉर्मल आपका बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट है। ठीक है, अब है क्या कि ये जो न्यूक्लियस है इसके पास दो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरे को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वो फेनोमिना है, so first we will go with the nuclear fission. Nuclear fission is the phenomena in which a heavy nucleus split into the two or more lighter nuclei and producing the tremendous amount of energy. फिजन में हम लोग क्या करते हैं? फिजन में हम लोग जो न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस को एक स्लो न्यूट्रॉन से डाल करके हम लोग ब्रेक करते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है और एक बड़ा न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक कर जाता है और ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी का एक जस्ट रिवर्स कंसेप्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो फिनोमिना से आप फेमिलियर होगे, जो आप सन में देखते होगे। It is the phenomena where the two lighter nuclei fuse together और form a heavier nuclei, जिससे आपको सन में जैसे एनर्जी मिलती है। एक हाइड्रोजन एटम है तो आप दूसरा हाइड्रोजन एटम लेते हो, दोनों हाइड्रोजन एटम ट्रिमेंडस प्रेशर में आते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू द हीलियम and it gives you the tremendous amount of heat and energy. That is the function of nuclear fission and this is the function of nuclear fusion, and these two are the important phenomena. मतलब न्यूक्लियस दो important phenomena शो करता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन शो करता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन शो करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में कुछ प्रोमिनेंट चीजें हैं, कुछ कॉमन बातें हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉमन बात क्या है कि न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, both gives you the tremendous amount of energy. First, second, in both the process certain mass m disappears which convert into the form of energy. ठीक है, in the fission heavy nuclei split, in fusion lighter nuclei fuse together, and these are the simple process which we know regard. These are the simple step, or as you can see that simple concept regarding about the nucleus. So as per your new syllabus, this is all about the nuclei. I hope the topic is clear to you. If you are having any doubt, then please ask it to me. Till then everybody, have a good day.